ڈیکنز کے بارے کچھ دیکھا جائے، کچھ سیکھا جائے آپ سب کے ساتھ مل کر. جیسے بھائی صاحب نے یہ حوالہ پڑھا، فرسٹ تھیسلونین، پہلا تسلونیکی اس کا 5واں باب اس کی 18ویں آیت. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. Thanksgiving teaches you how to count your blessings from God, from family, from friends. شکر گزاری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح ہمیں وہ برکتیں جو خدا سے ملی ہیں، خاندان کی طرف سے ملی ہیں یا دوستوں کی طرف سے ملی ہیں، ان کو کیسے یاد رکھنا ہے. Who does not thanks for little will not thank for more. جو تھوڑے میں شکر گزار نہیں ہوتا اس کو بہت بھی دیا جائے تو بھی شکر گزار نہیں ہوگا. اس کی جو ہسٹری تھینکس گیونگ کی ہے امریکہ میں، وہ اس طرح ہے کہ 1620 سپٹمبر 1620 میں انگلینڈ سے 102 لوگوں کا گروپ نکلا. یہ انگلینڈ میں اپنے مذہبی آزادی چاہتے تھے کہ ہم فرق طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں. چونکہ انگلینڈ میں ایک رول جو تھا وہ درج تھا کہ اسی طرح ہم نے عبادت کرنی ہے. تو یہ لوگ ایکچولی مذہبی آزادی کے لیے انگلینڈ سے ایک انہوں نے بحری جہاز لیا. 120 لوگ تھے اور یہ چل پڑے کہ جہاں کہیں ہمیں جگہ ملے گی. انہوں نے اس جہاز کو ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ فل اپ کر لیا. تو اب یہ لوگ 66 ڈیز تک سمندر میں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. آخر کار یہ میسیچیوسٹس جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کے ایک ساحل پہ، کنارے پہ آ گئے اور وہاں پہ اتنی زیادہ سردی تھی کہ ان کے جہاز میں تھوڑی دیر رکے، لیکن اس سردی کی وجہ سے وہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ وہاں سے باہر نکلے جہاز سے اور مقامی ساحل جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا. وہاں پر انہیں ایک آدمی ملا جو انڈین تھا، اس نے انگلش میں ان کو گریٹنگ کی. یہ جو لوگ سردی میں 102 ٹوٹل لوگ تھے جن میں سے آلموسٹ آدھے ٹھنڈ کی وجہ سے اور کنٹیجیس ڈیزیزز ان کو بیماری لگ گئی تھی جو ایک سے دوسرے کو لگتی تھی، اس سے مر گئے تھے. آدھے لوگ 102 لوگوں میں سے رہ گئے تھے، آدھے مر گئے تھے. اور جب یہ ساحل پہ آئے تو وہ انڈین نے ان کو انگلش میں گریٹنگ کی. کچھ دنوں کے بعد یہی آدمی اپنے جو کالونی ادھر تھی وہاں چلا گیا اور وہاں سے ایک اور آدمی کو لے آیا. سکوانٹو اس کا نام تھا. وہ آدمی کو لے آیا دوسرے کو، اس کا نام سکوانٹو تھا. وہ بھی ان سے ملا اور جو سکوانٹو تھا اس نے یہ لوگ جو بچ گئے تھے ان کو سکھلایا کہ کس طرح کاشتکاری کرنی ہے، مکئی کیسے کاشت کرنی ہے، مچھلیاں کیسے پکڑنی ہیں، خیمے کس طرح لگانے ہیں، سبزیاں کس طرح اگانی ہیں، کھانے کیسے پکانے ہیں، کون کون سے پودے جو ہیں وہ زہریلے ہیں، کن کو ہاتھ نہیں لگانا، کس کو آپ کو فائدہ ہوگا ان کو لگا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ٹوٹلی فرق دنیا تھی ان لوگوں کے لیے. اور کس طرح ڈریس اپ ہونا ہے. اور ان کے جو مقامی لوگ تھے، یہ آدمی جو تھا سکوانٹو، یہ لے گیا اپنی کالونی میں ان کو، تو وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، ان کے کافی لوگ مر گئے ہیں سردی سے، ہم ان کی ہیلپ کریں گے. جب ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا مقامی لوگوں کے ساتھ تو نومبر 1621 کی نومبر جو ہے اس میں ان کی پہلی فصل جو ہے وہ تیار ہوئی. تو تھینکس گیونگ کی ہسٹری ہے وہ ہے کہ ان کی پہلی فصل جب تیار ہوئی تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ خدا نے ہمیں مشکل سے، سمندر کے طوفانوں سے بچا کر، ان بیماریوں سے بچا کر ہمیں زندہ رکھا اور ان لوگوں نے ہماری مدد کی ہے. ہم ان کے ساتھ مل کر ایک میلہ کریں گے، ایک شکر گزاری کریں گے. اور یہ جو تھینکس گیونگ کا سلسلہ تھا یہ 3 دن کا تھا.
اس کے بعد یہ جو سکوانٹو ان کا ایک خاص آدمی تھا جس نے ان کی ہیلپ کی تھی ادھر، یہ جب بھی کوئی تھینکس گیونگ شکر گزاری کرتے تھے اس آدمی کو ضرور وہاں بلاتے تھے۔ یہ ان کے لیے شکر گزاری تھی کہ اس آدمی نے ہمیں یہ سارے طور طریقے یہاں کے سکھائے ہیں کہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ 1863 میں یہاں کے پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن نے فرسٹ ٹائم اسے نیشنل ہالیڈے قرار دیا، جو کہ نومبر کا آخری تھرسڈے ہوتا ہے۔ ہر سال میں نومبر کے آخری تھرسڈے کو پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن نے اسے نیشنل ہالیڈے قرار دیا۔ کلام مقدس میں اب ہم دیکھتے ہیں یہ تھی ہسٹری جو کہ تھینکس گیونگ کی، اور اب یہ سال سال تھینکس گیونگ منایا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن خدا نے ان لوگوں کو فضل دیا کیونکہ یہ بھولنا نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے لیے خدا نے زندگی میں کیا کام کیا ہے۔ کلام کی روشنی میں ہمیں تھینکس گیونگ کیسے ملتی ہے؟ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے تھینکس گیونگ ود فرسٹ فروٹ، پہلے پھلوں سے شکر گزاری کرنا۔ غور سے سنیں گے، حوالہ ہے اخبار 23 اس کی نام پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ اخبار 23 نامی اور 10 میں اخبار 23 نامی اور 10 میں بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ، When you enter that country I give it to you، اور اس کی فصل کاٹو، اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پھولا کاہن کے پاس لاؤ۔ Bring the priest a bundle of grain from the first cutting of your grain harvest۔ جب تم پہلی فصل کاٹو تو فرسٹ فروٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلا پھولا جو ہے وہ کاہن کے پاس لانا، اس چرچ میں لانا جہاں آپ ہر سنڈے جاتے ہیں، جہاں خدمت ہوتی ہے۔ فرسٹ فروٹ کا یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ ہے استثنا 18واں باب اس کی 4 آیت، اور تو اپنے اناج اور میں اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بال میں سے جو پہلی دفعہ قطرے جائیں اسے دینا۔ You must also give to the priest the first fruit of the grain, the new wine, olive oil and wool at the shearing time۔ shearing time جو first time جو پہلی بار بال کاٹے جائیں۔ فرسٹ فروٹ کی ہم بات کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے شکر گزاری ہم نے کیسے کرنی ہے۔ جو پہلا حوالہ اخبار میں پڑھا کہ اپنے جو فصل تیار ہے اس کا پہلا پولا جو ہے وہ اپنے اس کے حضور، پریسٹ کے حضور اس کے گھر میں لے کر جانا ہے۔ دوسرا حوالہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ایون بھیڑ بکریوں کے جو پہلے پلوٹے ہیں ان بچوں کو اس کے حضور لانا ہے، اور گرین، اولیو آئل اور وائن جو ہے اس کو حضور لانا ہے، جو اور ان بالوں کو جو قطرے جائیں بھیڑ بکریوں کے پہلی دفعہ وہ بھی اس کے حضور لے کر آنے ہیں، چونکہ ان بالوں کے ساتھ وہ کمبل بناتے تھے، ان بالوں کے ساتھ وہ گرم ایسی چادریں بناتے تھے جو لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے کام آتی تھی۔ استثنا 26 باب اس کی 2 آیت یہ بھی پلیز پڑھ دیں۔ تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ Bring it to the designated place of worship۔ designated place of worship جہاں آپ ہر وقت جا کر دعا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں لکھی۔ designated پلیس وہ ہے جہاں آپ ہر وقت جاتے ہیں۔ تو استثنا 26 باب اس کی 2 آیت میں جب تو اس ملک میں جو خدا تجھے دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پھل کو، ہر طرح کے جو سبزیاں پھل ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے پہلے جو پھل ہیں اس کے حضوری میں لے کر آنا۔ امثال 3 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔
जो बात हम कर रहे हैं कि पहले पलों से कलाम मुक़द्दस की रोशनी में कैसे लिखा है कि कैसे हम उसकी ताज़ीम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी शुक्रगुजारी पेश कर सकते हैं। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। ये जो पिलौठी के बच्चे होते हैं, पहले फर्स्ट बॉर्न जो हैं, ये भी फर्स्ट फ्रूट कलाम मुक़द्दस इसको बोलता है कि ये भी आपके फर्स्ट फ्रूट हैं। खरूज 13 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तो तू पिलौठी के बच्चों को और जानवरों के पिलौठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना, सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। खरूज 34 बाब उसकी 19वीं आयत, सब पिलौठे मेरे हैं और तेरे चौपायों में जो नर पिलौठे हों, क्या बछड़े क्या बड़े, सब मेरे हैं। ज़बूर 105 उसकी 36 आयत, उसने उनके मुल्क के सब पिलौठों को भी मार डाला जो उनकी पूरी कुव्वत के पहले फल थे। मेरे अजीजों, इन हवाला जात में हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्रूट है वो खुदावंद का है। मैं इस बात को बताना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि हो सकता है आपके लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, 4-5 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ कहती है कि हमने जो फर्स्ट फ्रूट्स अपना चेक जो है फर्स्ट वीक का, वो पूरे का पूरा चर्च में डालना है, चाहे वो 200 का हो चाहे वो $2000 का हो। उसमें हमने फर्स्ट फ्रूट जो है उसकी हुजूरी में डालना है, वो चंदे में डालना है, वो खुदा का है। और मैं इस बात का स्टेज पे ऐलान करता हूँ कि उसके बाद हमारी बरकत कम नहीं हुई, उसके बाद बरकत बढ़ती गई है, क्योंकि फर्स्ट फ्रूट ये कलाम में लिखा है। कई बार चीज़ें हम कलाम में से पढ़ते जाते हैं, लेकिन मेरे जो हम गौर नहीं करते इसका क्या मतलब है। ये लिखा है इवन तो फर्स्ट पिलौठे जो हैं उनको भी अलग कर देना। आप गौर करना कि वो खानदान जिसमें उनके पिलौठे, उनका पहला बच्चा खुदावंद से डरता है, खुदावंद की हुजूरी में रहता है, उनके खानदान में क्या क्या मोजज़े खुदावंद ने किए हैं, क्या से क्या कर दिया है। लेकिन वो खानदान आप खुद सोच सकते हैं, आपके रिश्तेदार जिस खानदान में पिलौठे को रिजेक्ट करके पिलौठे का हक बेचकर कुछ और जगह पे लगा दिया गया है, उस खानदान में ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां हैं जो उनकी कई बार ताकत से बाहर होती हैं। मेरे चीज़ों, ये पिलौठे जो हैं, चाहे आपका चेक है, चाहे इनकम है, चाहे थोड़ा है या ज्यादा, कलाम ये कहता है कि ये हिस्सा मेरा है। तू खुदावंद के हुजूर लेकर आना, तू काहन के पास लेकर जाना, तू उस जगह पे जहां तू प्रस्तश हर संडे जाता है वहां तो लेकर जाना, क्योंकि पिलौठे जो हैं मेरे चीज़ों, इसका तल्लुक यीशु मसीह के साथ है। जब हम लूका की इंजील उसका 2 बाब पढ़ते हैं, 7वीं आयत में लिखा है, और उसके पिलौठा हुआ और उसने उसको लेकर चरनी में रखा। इसकी जो पाकिस्तानी पंजाबी में वो ज़ातों का जिक्र करते हैं। अगर आपने कोई ज़ात देखनी है तो मेरे चीज़ों, जो पिलौठा है वो अपनी ज़ात को इस लेवल से देख सकता है कि यीशु मसीह पिलौठा है, इसलिए उसने जो कुछ किया है मैं भी वही करूंगा तो मेरे खानदान को बरकत मिलेगी। अपनी पहली आमदन के साथ पैरी स्टोन एक बहुत बड़े थियोलॉजियन हुए हैं जिसने ये बताया कि मिस्र से जब गुलामी से जब इसराइल जूइश कौम को निकाला गया तो ये लोग जो थे ये बुतों की पूजा करते थे, चांद को मानते थे, मगरमच्छ की प्रस्तश करते थे, सांपों की प्रस्तश करते थे, सूरज की प्रस्तश करते थे, हर चीज को मानते थे। लेकिन एक कुर्बानी जो थी ये बर्रे की कुर्बानी नहीं करते थे, ये बर्रे की कुर्बानी से नफरत करते थे। इसलिए ये एक मेन रीजन थी खुदा को इन लोगों को वहां से निकालने की कि एक तो मैं इनको अच्छे मुल्क में रखूंगा और दूसरा बर्रे का जो इंतजाम अज़ल से हुआ है उसको ये रिजेक्ट ना कर सके। आज भी मेरे चीज़ों, अगर हम पिलौठे हैं तो मेरे चीज़ों हम खुदावंद के लिए हैं, हम अलहदा किए हुए हैं। अगर हम खुदावंद की हजूरी से दूर हैं, मुझे नहीं पता कौन पिलौठा है और कौन पचलूडा यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप पिलौठे हैं, आप स्पेशल हैं, आप खुदावंद की नजर में। जब जूश इस्म में जो पिलौठा था उसको दुगना हिस्सा दिया जाता था, चाहे 12 बच्चे हों, चाहे 18 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों। पिलौठा स्पेशल है, पिलौठा 2 तरह की इज्जत के हकदार है, 2 हिस्सों का हकदार है। इसलिए अगर वो फैमिली जिसमें कोई पिलौठा है, अगर वो खुदावंद से दूर है, अगर आप अपने लिए, अपने खानदान के लिए इज्जत का बायस, सरफराजी का बायस, सुकून का बायस बनना चाहते हैं तो अपने पिलौठे के हक को जाने कि आप पिलौठे हैं और आप क्या उसकी हुजूरी में पूरे तौर से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट है, थैंक्सगिविंग विद योर लिप्स, होंठों के साथ
उसकी शुक्रगुजारी करनी। दूसरा पॉइंट, थैंक्स गिविंग विद योर लिप्स, अपने होंठों से शुक्रगुजारी करनी। मेरे अजीजों, आई एम सॉरी टू से दैट कई बार हम उसके हुजूर में आकर गीत सामने चल रहा है लेकिन होंठ बंद है। इसकी वजह है आप क्यों नहीं होंठ खोलते। थैंक्स गिविंग विद योर लिप्स, कुछ भी हो रहा है, दुआ हो रही है, अपनी ज़बान को खोले, अपने होंठों को खोले। कलाम हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर प्रस्तुत करें। इब्रानियों 13 बाब उसकी 15वीं आयत, हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। जो दूसरा पॉइंट है, थैंक्स गिविंग विद योर लिप्स, अपने होंठों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। जो दूसरा वाला है वो है होसिया 14वां बाब उसकी दूसरी आयत, कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और कहो हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर। जब होंठ ही नहीं खोले, जब दुआ ही नहीं की, जब मांगा ही नहीं, तो मेरे अज़ीज़ों में मिलेगा कैसे। और तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे। ये भी एक कुर्बानी है मेरे अज़ीज़ों, जब आप उसके हजूर में आकर प्रस्तुत करते हैं, जब आप उसके हजूर में आकर इबादत करते हैं, अपने होंठों को खोलते हैं, ये एक आप कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। बेशक आज बड़े और बच्चे उसके हुजूर में हम लेकर नहीं आते, लेकिन ये भी एक कुर्बानी है। जब उसके हुजूर में आए, अपने होंठों को खोलें। अगर आप पूरी बरकत लेना चाहते हैं, ब्रिंग योर कन्फेशन एंड रिटर्न टू द लॉर्ड, से टू हिम forgive all our sins and graciously receive us so that we may offer you our praises। अपने होंठों का फल जो है शुक्रगुजारी है, उसको पेश करें। यशाया की किताब 57 चैप्टर 19, 20, 21 उसकी आयत जो है उसमें इस तरह लिखा है, खुदावंद फरमाता है मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है। अबंडेंट पीस बोथ नियर एंड फॉर, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। देखें जरा जुबान खुलने से क्या लिखा है, मैं उसे सेहत बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समुंदर की मानद है जो हमेशा मौजज़न और बेकरार है। हु रिजेक्ट मी, शरीर का लफ्ज़ ये नहीं ज़रूरी कि वो शरारती इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है। शरीर का मतलब ये है वो इंसान जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, जिसने जो मुझे कबूल नहीं करता। सो हु रिजेक्ट मी रेस्टलेस सी, उस समुंदर की मानद है जो मौजूद, रेस्टलेस सी, जो समुंदर एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, उसकी मिसाल दी गई है जो इंसान अपने होंठ नहीं खोलता। उसके बाद क्या लिखा है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। जो होंठ नहीं खोलेगा, जो मिलकर प्रस्तुत नहीं करेगा, वो नुक्स निकालेगा। वो कहेगा ये बात इस तरह होनी चाहिए थी, ये बात इस तरह होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम उसकी हजूरी में आकर जिस तरह के भी लोग प्रस्तुत करते रहे, चाहे वो न्यू लाइफ चर्च है, चाहे वो ओल्ड लाइफ चर्च है, जहाँ भी आप जाएं, अगर जो कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ मिलकर प्रस्तुत करें। जिस तरह के भी करते हैं उसी तरह प्रस्तुत करें। लिखा है जो उसको रिजेक्ट करता है वो कीचड़ उछालता है, गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं, जो उसको रिजेक्ट करते हैं उसके लिए सलामती नहीं है, क्योंकि ये जो शुक्रगुजारी है, होंठों का फल जो है, ये वही गुजारेगा जिसका दिल शुक्रगुजारी से भरा है। लेकिन शरीर जो है, जिसने उसको रिजेक्ट किया है, जिसको नाफरमान हुआ है, जो उस पर बिलीव नहीं रखता, वो ना तो होंठों की कुर्बानी करेगा, लेकिन कलाम मुकद्दस मेरे अज़ीज़ों ये बताता है उसके लिए सलामती नहीं है। वो आज जिंदा है, कल को मरेगा, क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट किया है, उसके नाम को रिजेक्ट किया है। कितने हजारों लोग बड़े बड़े सूरमा आए जिन्होंने खुदावंद के नाम को रिजेक्ट किया, लेकिन एक ऐसा वक्त आया, चूंकि वो मगरूरों का मुकाबला करता है, इसलिए क्या हुआ कि उनकी सलामती नहीं है। जो शरीर है
جو खुदावंद के नाम को रिजेक्ट करता है उसकी सलामती ना है ना थी ना कभी होगी, क्योंकि वो खमियां ढूंढते हैं, वो कीचड़ उछालते हैं उस समुंदर की मानद है जो मौजूदन है और बेकरार है और उनके लिए कोई सलामती नहीं। हर वक्त उसके हुजूर में अपने होंठों का फल गुजारा करें। जहाँ भी आप जाते हैं, अगर प्रस्तश हो रही है, अगर इबादत हो रही है, अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व करें, अपने आप को उस इबादत का हिस्सा बनाएं। अगर आप होंठों की कुर्बानी जो है उसका अजर लेना चाहते हैं, उसका मतलब समझना चाहते हैं, तो वो ये है कि जब भी आप जाएं उस जगह पे अपने होंठों को खोलें, प्रस्तश करें, ज़बूर गाएं, गीत गाएं। अगर कई तर्ज़ें नहीं भी आती, सामने लिखा है, कोशिश करें कि उनके साथ मिलकर प्रस्तश की जाए। तो तीसरा पॉइंट है थैंक्स गिविंग विद टाइथ, अपने 10वें हिस्से से शुक्रगुजारी पेश करना। जो पहला हमने देखा थैंक्स गिविंग विद द फर्स्ट फ्रूट, पहले फलों से शुक्रगुजारी करना। दूसरा पॉइंट थैंक्स गिविंग विद योर लिप्स, अपने होंठों को हमने खोलना है, इबादत में कहीं जाना है, प्रस्तश करनी है, अपने होंठों को खोलना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है थैंक्स गिविंग विद योर टाइट्स, अपने 10वें हिस्से से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। अहबार उसका 27वां बाब और उसकी 30वीं आयत ऐसा पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। अहबार 27वां बाब उसकी 30वीं आयत, थैंक्स गिविंग विद टाइथ, 10वें हिस्से से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। और जमीन की पैदावार की सारी दायित्व खा जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो खुदावंद की है, खुदावंद के लिए पाक है। और जमीन की पैदावार की सारी दायित्व की, खास वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है। वो मेरे लिए आपके लिए 10वां हिस्सा बनाया ही नहीं गया। कलाम ये फरमाता है कि वो मेरे लिए है और खुदावंद के लिए पाक है। दूसरा गुना एक हम वो देते नहीं, वो खुदावंद की है और हम लेते हैं, और खुदावंद के लिए पाक है। पाक जो चीज़ें मखसूस की जाती थी हैकल में, उसे सिर्फ काहन के लिए होती थी। हम चूँकि उसकी दायित्व की उसके हिस्से को खाते हैं, इसलिए मेरे अजीजों आगे जाकर हम देखेंगे कि क्यों हम मुश्किलात और प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। मलाकी 3 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत प्लीज ये भी पढ़ दें। पूरी दायित्व की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फ़वाद फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। थैंक यू। रब्बुल फ़वाद फरमाता है। ये 2 बार आया है, रब्बुल फ़वाद फरमाता है। पूरी दायित्व की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फ़वाद फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों का मतलब है विंडोज ऑफ हेवन, आसमान की खिड़कियाँ। दरीचों का मतलब है आसमान की खिड़कियाँ खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा, वो तुम्हारे ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जल जाएगा। मेरे चीज़ों में मैं कनाडा में गया तो वो पादी साहब बता रहे थे कि हमारे एक पास्टर साहब आए तो उसने स्टेज पे कहा कि मेरे चर्च के सारे लोग दायित्व देते हैं। तो उनमें से एक बहन बहुत ऑनेस्ट थी, उसने बाद में पूछा पास्टर साहब मैं तो कभी दायित्व नहीं तू सारा का कहता सारे दायित्व दे दे कहते ने भैन तुसी मनो तो नहीं दी पर तुसी डॉक्टरां नूं दे दे। दायित्व की निकलनी है, चाहे आप एक्सीडेंट में उसको कवर करें, चाहे उसको बीमारियों में कवर करें, चाहे किसी और वजह से कवर करें, उसका हिस्सा चूंकि उसने कलाम में फरमाया है वो मेरा हिस्सा है, आप रख नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तान का तेरा कच्चा फल ना जड़ जाएगा, तेरे नुकसान नहीं होंगे जब तुम उसके हजूर लेकर आता है। मेरी बात हो रही थी, ये मूसा भाई के बेटे को मैं लेकर गया साथ ऑक्शन पे गाड़ी लेने के लिए, तो उसको वो बोल रहा था कि अंकल कितनी बार आपका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना मैंने किसी को मारा है गाड़ी से,
ना किसी की गाड़ी इवन मेरे करीब आई है। मुझे ये बिलीव है कि किसी की गाड़ी भी मुझे हिट नहीं करेगी। क्या ऐसा बिलीव हम यकीन रख सकते हैं कि 20 साल हो गए हों, रोड पे हों और गाड़ियों का बंदा काम करता है, रोज गाड़ियों में होता है, लेकिन गाड़ी किसी दूसरी के साथ लागे नहीं रही? क्या बात है? मैं टिड्डी को डांटूंगा कि तेरा नुकसान ना करे। उसके बाद जो तीसरा हवाला है पैदाइश 28 बाब उसकी 20वीं 21 और 22वीं आयत, ये प्लीज जरूर पढ़ें, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। हम बात कर रहे हैं थैंक्स गिविंग विद टाइथ, 10वें हिस्से के साथ उसके हुजूर शुक्रगुजारी करना, 10वें हिस्से के साथ उसके हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आना। जेनेसिस 28, 20th, 21st and 22nd आयत। यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे। गौर से सुने, यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे। एक बात, और जो सफर मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे। और सफर जो मैं कर रहा हूँ ये हम सब हर रोज करते हैं। खुदा क्या मेरे साथ है? नंबर 2, जो मैं सफर कर रहा हूँ इसमें अगर वो मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने को रोटी खाने को कपड़ा देता रहे। खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा, 4 चीजें। खाने को रोटी पहले नंबर पर अगर खुदावंद मेरे साथ रहे, नंबर 2 सफर में अगर वो मेरी हिफाजत करे, नंबर 3 मुझे रोटी दे, नंबर 4 मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, और 5वीं बात, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं। और मैं अपने बाप के घर सलामत लौटाऊं। सलामती की दुआ कर रहे ये शख्स मेरे अजीजों। हम खुदावंद मेरा खुदा हो और तू में खुदावंद मेरा खुदा होगा। ये कहानी जो यकूब की है हम सब जानते हैं। यकूब अपने भाई जो पिलोठिया था यसू, उसका पिलोठे का हिस्सा चुराकर बरकत अपने बाप से लेकर घर से भागा था। ये शख्स बरकत अपने बाप से चोरी, वो अपने भाई की ने जो बरकत लेनी थी ये उसने बरकत लेकर घर से भागा है। और फिर क्या हुआ है कि इसने कोई लंबी चौड़ी दरख्वास्त खुदा से नहीं की कि अगर तू मुझे अमेरिका में लेकर जाएगा तो मैं ये तुझे करूँगा, अगर तू मुझे बड़े बड़े महल और कोठियाँ और गाड़ियाँ और ये देगा मैं फिर कुछ करूँगा। इस शख्स ने बस कहा है कि मुझे तू सलामती अगर दे और मुझे रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए, और मैं जब वापस आऊँ तो मुझे सलामती से मेरे बाप के घर में अगर ले आए तो फिर मैं क्या करूँगा जी। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर है तुझे दिया करूंगा। मेरे चीजों, हम सोचते हैं कि 10वां हिस्सा निकालने के लिए जब पैसे होंगे, मेरे ख्याल में हमने उल्टा कुलिया पकड़ा है, इसलिए बरकत से खाली है। कुलिया ये है कि मुझे बरकत मिलने से पहले मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूं कि बरकत मुझे सिर्फ हिफाजत चाहिए कि मैं खैरियत से अपना सफर मुकम्मल करूं, मुझे सिर्फ कपड़ा और रोटी चाहिए और सलामती से वापसी आ जाऊं। उसके अलावा इस बंदे ने कुछ नहीं मांगा खुदावन से। लेकिन हुआ क्या है कि जब ये चला जाता है तो फिर ये अपने मामू के घर जाता है। वहां 14 साल ये नौकरी करता है। 14 साल नौकरी करने के बाद जब ये वापस आता है तो मेरे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब इसने वापस आना था तो अगर इसके मामू ने कहा कि भेड़ जो है बकरियां चितले बच्चे दें तो वो तेरी होंगी, दूसरी जो है वो मेरी होंगी, और भेड़ों ने सारी ने वही चितले बच्चे देने शुरू कर दिए। इस शख्स ने वादा किया था बरकत लेने से पहले 10वां हिस्सा देने का कि मैं अगर 10वां हिस्सा खुदावंद के हुजूर दूंगा, तू मुझे अगर बरकत देगा, सलामती से वापस लाएगा, तो मैं पहले इस बात का इतराफ करता हूं कि तेरी हुजूरी में शुक्रगुजारी जो है 10वां हिस्सा जो है शुक्रगुजारी के साथ लेकर इस तरीका से आऊंगा। जब भेड़ों ने उसने कहा कि धारीदार बच्चे दें भेड़े, तो सारी भेड़ों ने वही बच्चे देने शुरू कर दिए। तो उसकी बरकत इस बंदे के ऊपर इस कदर थी कि उसके जो मामू थे उनके घर
घर में भी बरकतों के ढेर लगने शुरू हो गए, उनके भी मालो मोएशी सारा कारोबार बढ़ने लगा। लेकिन मेरे चीज़ों बरकत, ये सुने जरा गौर से, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, जब ये वापस लौटा तो चूंकि भाई से नाराज होकर, भाई से लड़कर भागा था, इसने भाई के लिए गिफ्ट लिया। और गिफ्ट क्या ले रहा है? 200 गोट्स, 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 बेड़े, 20 मेंढे, 30 दूध देने वाली ऊंटनियां और बच्चों समेत, 40 गायें, 10 बैल, 10 गधियां, 10 गधे, ऑल टुगेदर 550 जानवर जो हैं ये अपने भाई को गिफ्ट दे रहा है। आप यकीन करेंगे ये शख्स जो वहां से अपने मुल्क से वापस अपने बाप के घर आ रहा है, इसके पास खुद कितने जानवर होंगे? जो 550 जानवर, ये पूरी की पूरी मंडी जो है ये अपने भाई के लिए गिफ्ट कर रहा है। लेकिन इसके पास इससे ज्यादा कितनी और बरकत होगी? इतनी अगर बरकत, मेरे चीजों अगर आप देखें तो ये बंदा तो खाली घर से निकला है, इसने एक ही वादा किया, मैं शुक्रगुजारी खुदावंद के घर में 10वें हिस्से के साथ दिया करूंगा, अगर तू मुझे कपड़ा दे और रोटी दे। इसने तो कुछ नहीं मांगा, मुझे सलामती से अपने बाप के घर ले आए। मेरे चीजों मुझे याद है मैंने जब जाना आना था, हम तो भागकर इधर नहीं आए, हमारे तो वीजे लगे थे और इवन रिश्तेदारों ने हाथ डाले थे। हमें मूवी बनाई गई थी मेरी और आपकी भी बनाई गई होगी, हाथ डाले गए थे हमें कि ये अमेरिका में जा रहे हैं, इनको हाथ डालो, इनके वीजे लगवा कर आए हैं। लेकिन फिर भी हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। उसकी रीजन ये है मेरे चीजों, आज मैं और आप उस हुक्म को उल्टा ले रहे हैं जिंदगी में। अगर आप यकूब जैसी बरकत लेना चाहते हैं तो 10वां हिस्सा आपका निकलेगा जब आप उसके हुजूर इस बात को करेंगे। ये शख्स घर में से खाली निकला है, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वही कपड़े हैं जो इसने पहना है, ना इसके टैची के इख्तियार किए गए थे, ना इसका वीजा लगा था, ना इसको हाथ पहनाए गए थे ये, और ना इसको जहाज मुहैया था। अगर मेरे चीजों हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो उसकी जो मेन रीजन है वो ये है, हम उसका 10वां हिस्सा उसके हुजूर शुक्रगुजारी से नहीं लेकर आ रहे, हम उसका हिस्सा खाते हैं। इसलिए मेरे चीजों हर तरह से कमियां हमारी जेबों से, हमारी जिंदगी में से निकलती हैं। मैं भी पूरे तौर से अगर कुछ कमी कर रहा हूं, आप भी अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा कि ये शख्स खुदावंद को प्यार करता है, ये थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन फिर भी वो बरकत नहीं है। वजह ये है ना मैंने और ना आपने उस हुक्म को पूरा किया है जिस तरह उसके कलाम में आया है कि तुझे बरकत मिलने से पहले मैंने ये वादा करना है कि मेरे लिए तू बरकत देना, मुझे तू सलामती से लाना। लेकिन ये देखें 550 जानवर अपने भाई को ये गिफ्ट कर रहा है, बरकत कितनी बड़ी है। क्या मेरे और आपके लिए ये आज चैलेंज है? अगर हम ये सोचें कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ाने नहीं थे, अगर बढ़ गए हैं तो इनको हमारे लिए 10वां हिस्सा नहीं निकलता तो कभी नहीं निकलेगा। अगर आप उससे बरकत चाहना चाहते हैं, तो यकूब जैसी बरकत पाना चाहते हैं, तो फिर हमने आज ही वादा करना है। बेशक हम बहुत सी चीजें काटते हैं, बेशक हम बहुत से काम, हम बहुत सी बातों को काटते, उसके हुजूर में जो उसने हमारे लिए रखा है, उसके जैसे लिखा है, काहन के पास लेकर तू जाना, उसके हुजूर में तू लेकर जाना, उसके हुजूर जाकर तू ये शुक्रगुजारी 10वें से करना। मेरे चीजों अगर हम ये करते हैं तो हमें यकूब जैसी बरकतें मिलने का वादा है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर जिस तरह उस बिलौठे ने उसके बड़े भाई ने हक बेचा और वहां का वहां रहा, हम भी वहां के वहां रहेंगे। आइए आज इस बात का वादा करें कि हम उसके हुजूर शुक्रगुजारी 10वें हिस्से के साथ जाएंगे, ताकि जो यकूब को बरकत मिली थी वो मुझे और आपको भी मिल सके। तो चौथा पॉइंट है वो थैंक्सगिविंग विद एवरीथिंग वी हैव। जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है उसकी शुक्रगुजारी। ज़बूर 103 प्लीज पढ़ने में रहनुमाई करें। ज़बूर 103 उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत, 4 आयत हम पढ़ेंगे। ज़बूर 103 दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है
وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند ازسرنو جوان ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ جو پہلا حوالہ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے تھینکس گیونگ ود ایوری تھنگ وی ہیو۔ جو کچھ بھی ہمیں خدا نے دیا ہے، جیسے بھی ہیں، اس کے ساتھ اس کے حضور شکر گزار ہونا۔ اے میری جان، خدا ان کو مبارک ہے، کسی نعمت کو فراموش نہ کر، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے، چاہے وہ جاب کی نعمت ہے، چاہے وہ بلیسنگ کسی طرح کی بھی نعمت آپ کو خدا نے دی ہے، اس کو فراموش نہ کر۔ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ کتنا بڑا فضل اس نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تیری ساری بدکاری کو تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، شفقت اور رحمت کا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہے، تجھے عمر پر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ کون سا ملک ہے جس میں کھانے پینے کی امریکہ سے بڑھ کر افراد ہو؟ جس طرح کی مرضی ملک ہے میرے عزیزو، ایک بار نیوز میں بتا رہے تھے کہ آلموسٹ 40 ملکوں کا کھانا یونائٹڈ اسٹیٹ میں ٹریش میں پھینکا جاتا ہے۔ میرے سامنے وہ آرڈر کرتے ہیں، کھانا کھایا تھوڑا سا، باقی سارا ٹریش میں جاتا ہے۔ 40 ملکوں کا کھانا ایک سال میں جو امریکہ میں ٹریش میں پھینکا جاتا ہے، اتنی بہت زیادہ برکت ہے، سنبھالا نہیں جا رہا لوگوں سے۔ فلپیوں چوتھا باب اس کی 6 آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ جو کچھ بھی ہے، جو چوتھا پوائنٹ ہے تھینکس گیونگ ود ایوری تھنگ، جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ اس کے سامنے پیش کی جائیں۔ متی رسول کی انجیل میں ہر ایک چیز کا شکر ادا کرو۔ خدا یسوع مسیح نے بھی ایون جب وہ زمین پہ تھا، چونکہ وہ انسان بن کر آیا، متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے جو کچھ مجھے سونپا گیا، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا۔ خدا یسوع مسیح بھی خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ میرے عزیزو، تھینکس گیونگ ود ایوری تھنگ وی ہے، جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے شکریہ ادا کرنا، ہر بات میں شکر گزاری کرنا، ہر نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ وہ ہماری بدکاریوں کو بخشتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، شفقت رحمت کا تاج رکھتا ہے، ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، عقاب کی طرح ہماری جوانی کو نیا کرتا ہے۔ ایون یسوع مسیح نے جیسے اقرار کیا کہ مجھے باپ کی طرف سے سب کچھ سونپا گیا، اس کے لیے میں شکر کرتا ہوں، لیکن باپ اور بیٹے کی ایک ریلیشن شپ ہے جہاں کو دوسرا انسان نہیں جان سکتا۔ کہ آج ہم ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تو مجھے ہر طرح کی نعمتیں بخشتا ہے، تو مجھے بیماریوں سے، تو مجھے ہلاکت سے بچاتا ہے، مجھے ہر روز اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، مجھے اچھے کپڑے دیتا ہے، مجھے اچھے جوتیاں دیتا ہے، مجھے اچھے دوست دیتا ہے، مجھے اچھے ریلیشن شپ دیتا ہے، مجھے شیطان پہ غلبہ پانے کی طاقت تو بخشتا ہے، مجھے ہر طرح کے خوف اور خطروں سے بچاتا ہے، میری زندگی کو میں کئی تو معجزے کرتا ہے، میرے گھر میں شادمانی ہے، میرے گھر میں رونق ہے، مجھے تو سب کچھ مہیا کر رکھا ہے، تو میرے سفر کو جہاں میں جاتا ہوں جاتی ہوں تو ہر روز میرے سفر کو مبارک کرتا ہے۔ اس لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یہ شکر گزاری، یہ تھینکس گیونگ اس لیے ہے کیونکہ تو جو کچھ بھی میرے ساتھ کرتا ہے، مجھے ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے تو ہمیشہ بچا کر رکھتا ہے، ہر روز مجھے تو نئی نئی چیزیں دیتا ہے، تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ دے رکھی ہے، میں تیرے کس نعمت کا شکر ادا نہ کروں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، انسانوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح ہم نے پہلے ہسٹری میں پڑھا کہ وہ مسٹر سکوانٹو کو ہر وقت جب وہ شکر گزاری کرتے تھے
कछुआ कहाँ बैठा है। अब कछुआ, आप बताएं ये चढ़ा कैसे वहां? ये कछुआ है तो ऊपर बैठा हुआ है, ये चढ़ा कैसे है? ये दरख्त कटा हुआ है उसके ऊपर। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ, उसने अपने ऑफिस में, उसका डेस्क जिधर था उसकी अपोजिट साइड, ताकि हर वक्त इस तस्वीर को देखता रहे। और एक दूसरा बिजनेसमैन जो वो भी पेंटर था उसके पास आया, 2-3 बार गया, फिर उसने कहा कि मैं इसको ये पूछना है कि ये दरख्त पे कछुआ आपने रखा हुआ है, फेंस के ऊपर कछुआ रखा है, इसका क्या मतलब है? उस शख्स ने उसको बताया कि ये कछुआ खुद यहां चढ़ नहीं सकता था, इसको किसी ने रखा है। मैं अगर आज कामयाब हूं, उस बिजनेसमैन ने कहा, मैं अगर आज कामयाब हूं तो मैं इस कछुए की तरह कीचड़ में रहता था, जमीन के ऊपर रहता था, मेरी जमीन पे औकात थी। अगर मैं आज इस पे चढ़ा हूं, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं, अगर मेरे पास बिजनेस है, अगर मेरे पास कंपनी है, उसकी बहुत बड़ी प्रिंटिंग की कंपनी थी, उसने कहा मुझे किसी ने हेल्प की है यहां बैठाने के लिए। मैं इस बात को अपनी जिंदगी में, ये उस पेंटर की बात है कि मैं बात को भूलना नहीं चाहता। मैं हर वक्त इस कछुए को जो फेंस के ऊपर बैठा है देखकर इस बात को रिमाइंड करता हूं कि मुझे भी किसी ने यहां पे पहुंचाने के लिए, इस लेवल पे करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए मेरी किसी ने मदद की है। मैं उस आदमी को, मैं उस शख्स को भूल नहीं सकता। अगर मैं भूल जाऊं तो मैं खुदा का गुनहगार हूंगा। वो शख्स बोलता है चूंकि इस कछुए को यहां रखा गया है, किसी ने इसकी मदद की है रखने के लिए। आज भी मेरे अजीजों, अगर खुदावंद के साथ साथ हम चलते हैं, खुदावंद बरकत देता है, लेकिन थैंक्स गिविंग वाले दिन जो मिस्टर सिकांडो को लोग करते थे, जो इज्जत देते थे, आज भी अगर आपको आपकी जिंदगी में जिस खानदान में से आप हैं, अगर किसी शख्स ने आपको ड्राइविंग सिखाई है, अगर किसी शख्स ने आपको चूल्हा चलाना सिखाया है, अगर किसी शख्स ने आपको रास्ते दिखाए हैं, अगर किसी शख्स ने आपको स्टोर दिखाए हैं, अगर किसी शख्स ने आपकी जॉब में मदद की है, जिस तरह का भी किसी ने आपका साथ दिया है, आपके उसके हकदार हैं। वो इंसान की आप मदद करें, उस इंसान को भूले ना, क्योंकि आप अपनी कुव्वत से, अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते थे। किसी ने आपको वहां से आने में मदद की है, उस बात को ना भूले, खुदावंद को पता ही है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उस क्वांटो को जब वो थैंक्स गिविंग करते थे तो हर वक्त बुलाकर उसको इज्जत देते थे। आज भी मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से हमें ये सबक मिलता है कि हम पहले फलों से उसकी शुक्रगुजारी करें। इकलौते अगर बेटे हैं, अगर बेटियां भी हैं, उसको खुदावंद के हुजूर लाएं, कहें कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी खुदावंद के लिए है। मेरे अजीजों, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने पूछा सर हाउ मेनी किड्स यू हैव? मैंने उसको कहा 2, मैंने उसको तस्वीर बताई। वो कहता है कि ये जो आपका बेटा क्या बनना चाहता है? वो खाली कहती है कि ये बेटा जो आपका है ये क्या बनना चाहता है? मैंने कहा इसकी माँ कहती है कि ये पास्टर बने। आई डोंट नो, जो भी ये बनना चाहता है हम ओके विद दैट। वो तस्वीर देखकर पता क्या कहती है? सैफ कर, आई डोंट थिंक सो दिस कैन गोइंग टू बी अ पास्टर। वो कहती है मैं फोटो देख कर कहती ये लड़का पास्टर नहीं बनेगा। मेरे चीज़ों ये जरूरी नहीं है। मैंने उसको खाली को कहा डोंट से दैट, हम इसके लिए दुआ करते हैं। अगर आपके पास पिलौठा है, आप उसको खुदाम के लिए मखसूस करें। और पिलौठा अगर मैच्योर हो चुका है तो वो खुद इस बात को जाने कि मैं अलग किया हूँ, मैं स्पेशल इंसान हूँ, मुझे मेरी निस्बत खुदा यीशु मसीह के साथ मिलती है। इसलिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर जो कुछ काम किए, जो बात की, जो मुनादी की, मैं उसको फुल फ्लेज सपोर्ट करना चाहता हूँ। और उस इंसान को कभी ना भूलें जिसने आपको यहाँ पर बिठाया है। किसी इंसान ने हमें बिठाया है। मैं घर में गया अफसोस करने के लिए 2 वीक पहले, तो मुझे पूछते हैं सरदार साहब उससे चर्च जाते हो? मैं जी हाँ जी उत्थे जाने हो क्यों? कहना नहीं, कई बार होता है ना कोई उत्थे दो जाता है, तुसी उत्थे जाते हो। मैंने उसको कहा, सारी फैमिली बैठी थी, मेरे लिए जो पादरी साहब ने किया है मैं खुद नहीं कर सकता था, मेरा बाप नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे दिल में यह है
जब तक मैं जिंदा रहूं मैं इस शख्स को हर तरीका से सपोर्ट करता रहूंगा। ये मेरी कमिटमेंट पूरे खानदान में मैंने ये बात बताई, छुपाने की बात नहीं है। अगर आप उसकी हजूरी में आए हैं तो आज मेरे चीज़ों इस बात को थैंक्स गिविंग वाले दिन की जो मीटिंग हम कर रहे हैं, जो मैसेज सुन रहे हैं, साथ लेकर जाएं खुदावंद के साथ। उस आदमी को ना भूलें जिसने आपको ऊपर चढ़ाया है, क्योंकि अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने किसी भी काबिल से ये कछुआ ऊपर नहीं बैठ सकता था। किसी ने इसकी हेल्प की है। अगर आपकी किसी तरह से भी किसी शख्स ने भी कोई हेल्प की है, उस शख्स को कभी ना भूलें और इसके साथ साथ अपने बलौटे को जो है डेडिकेट करें और खुदावंद के लिए जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसकी सैक्रिफिकेशन के लिए शुक्रिया अदा करें। उसने हमें जो है शैतान पे गलबा देने के लिए हमें बुलाया है, हमें कुव्वत दी है कि उसके सर को कुचलो। मेरे अजीजों, अगर वो यीशु मसीह के लिए हम शुक्र करेंगे, खुदा के लिए शुक्र करेंगे जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमारी खलासी कराई। हम तो गुलामों की मंडी में बिकने वाले इंसान थे, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजकर हमें आज़ाद करवाया। जिस तरह इन लोगों को आज़ादी मिली कि ये अपनी मर्जी से प्रत्यक्ष कर सके, उसी तरह हमें भी खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजकर हमें खरीद लिया। हम अपने नहीं हैं बल्कि उसके खून खरीदे हैं, ताकि मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों से जहाँ कहीं जाए ना सिर्फ ये बात रहे कि हम कितने बड़े हो चुके हैं, ये बात रहे हमारी जिंदगियों में उसका खौफ है, और ना हम खुदा की बल्कि उन तमाम इंसानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी यहाँ पर बिठाने में मदद की है। खुदा आप सबको इस कलाम के